Gurukam. Okay. So guys, in today's class, we will go and we will learn about Newton's law, right? So total, Newton has how many laws? Newton's has Three law. first law, second law, okay, and the third law. I'm just giving you a hint here. It talks about inertia. First law is talking about inertia. Second law It talks talks about, about force is directly proportional to dp/dt. right, and this talks about action and reaction. Reaction. Okay, so just give me a second. So please make a note of it. इसको note करो. Yes, sir. सर ये आपने लास्ट क्लास में लिखवाया था. लिखवाया था. चलो अब हम पहला लॉ देखने जा रहे हैं. Give me a moment. So we are going to look into Newton's first law. Okay, guys. So I'm just going to upload here a few things which you should note it. So I'm just uploading. Give me a moment. न्यूटन अंकल का पहला लॉ आ गया है यहाँ पे. Sana, can you read the first law, please? The bold letters. Sana. Yes, sir. Straight line, according to Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest and the body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an internal force to change its state of rest or of uniform motion. Okay. So what do you understand by it? This means that a body at rest doesn't move and it remains stationary, and a body in motion will continue in motion. Okay, fine. Give me a second. Okay. So यहाँ पर बहुत simple सा. So this is a statement है. chapter of forces. Then why are we learning Newton's laws of motion? Because in force and laws of motion, it is important to understand these things. How is forces related to motion? I'm coming. आप क्यों इतना परेशान क्यों हो जा रहे हो? परेशान मत हो. This statement says a body at rest remain at rest. Suppose it, मैं एक example लेता हूँ. I think मैंने उस दिन समझाया था कि नहीं समझाया था? By taking the football. Have I told? समझाया था. हाँ, ये समझाया था. समझाया था मैंने ये वाला. चलो मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. Suppose that हमारे पास एक क्या है? हमारे पास एक फुटबॉल है. ठीक है. अब ये हमारे पास फुटबॉल है, तो बॉल यहाँ पर रखा हुआ है इस पॉइंट पर. क्या होगा बॉल के साथ? सृष्टि बताओ क्या होगा बॉल के साथ? वो बॉल रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उसके अभी बॉल हमारा रेस्ट में है. द पोजीशन वी आर टॉकिंग ए पोजीशन क्या है हमारे पास? ए. चलो टाइम बीतने दो. बॉल कहीं भाग गया क्या? No sir, nothing will happen. Nothing happened. क्यों? Because no force is applied on the ball. Right. Because no force is applied on the body. Right. Ball. अच्छा. मैं एक पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ गाइस. आप लोग जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखना. देखो यहाँ पर क्या है. इस पिक्चर में अगर आप देखोगे, पहला कंडीशन क्या है कि बॉल किस में है? रेस्ट में है. राइट. बॉल पर रेस्ट में है. एंड can you see the person has kicked the ball? Sana, can you see this? Sana? Yes, sir. Person has kicked the ball. So kicking the ball means what? What he has done? Can you tell me? Can you, hello?
Can you hear me? सना, आपकी आवाज नहीं आ रही. सना, why सृष्टि, can you hear me? Yes, sir. Okay, सना क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. Why you are muted? So sorry, I didn't realize I was on mute. Okay. I'm so sorry. Okay, no problem. इस पिक्चर में क्या हो रहा है? सेकंड पिक्चर में The guy is kicking the ball. boy is kicking the ball. Boy is kicking the ball means what he is doing. He is applying force to the ball. Okay. Give me a second. Give me a moment, please. Okay. Now, so in this case, you can see the boy is kicking the ball. That means boy is applying what? The boy is applying the force. And when we have applied the force, what's happening in this third picture? It's flying in the air. It is flying in the air, So right? it is moving, basically, we can say. Correct, correct. Understand? So हमारा जो statement था, मैं वापस से statement पे अपने आज जाता हूँ. ओहो, I'm moving again on my statement. I have told here that the body is in motion, will continue in motion. मतलब कि अगर जो body motion में है, वो motion में ही रह जाएगा. मतलब रेस्ट जो है वो रेस्ट में रह जाएगा, मोशन जो है वो मोशन में रह जाएगा, अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट. अगर उसका स्टेट मतलब उसे कंडीशन बदलनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Please make a note of it. So should we write the whole law? Yes. एग्जाम में पूरा लाइन लिखना पड़ेगा. एग्जैक्टली यही जो लिखा है यहाँ ब्लैक एंड बोल्ड तो में. याद करना पड़ेगा exactly. हाँ एग्जैक्टली बोल्ड लेटर वाले ही लिखना ना. हाँ बोल्ड लेटर वाले जहां मैंने रेड मार्क से कर्व Yes, कर रखा sir. है. आपको यही सेंटेंस लिखना भी पड़ेगा. गॉट इट? सिंपल Yes, सी sir. बात है, समझो ना. आप बैठे हुए हो सना, आप बैठे हुए हो ना अभी. Yes, sir. हाँ, तो क्या अभी अगर हिलना हुआ आपको तो क्या करोगे? आप पर फोर्स कोई लगाएगा तभी तो आप इधर उधर जाओगे. या तो फोर्स खुद से लगा लो या कोई और लगाएगा, अदरवाइज आप चेयर पे बैठे रह जाओगे. राइट? Yeah. अच्छा, तो सिंपल सा बात है. अगर एक चीज बताओ, सिंपल सी बात, छोटा बच्चा देखा है जो 2-3 साल का रहता है? Yes, sir. अगर वो भाग रहा होता है, अगर वो दौड़ता रहता है तो रुकने का नाम लेता है क्या? No, sir. नहीं लेता ना. तो अगर उसको रोकना है तो हम क्या करेंगे? हमें उस पर फोर्स आना पड़ता है. पकड़ना पड़ता है. उसे पकड़ना मीन्स हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. Lift And करने के लिए. yes, and that is the reason he will stop. तो वो भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा, रुकेगा ही नहीं कहीं पे. तो सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखो कि रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन है तो मोशन में रहेगा, अगर जब तक उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई ना कर दे तो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट करो. Done, sir. Done, sir. ओके, अब बात आती है इसमें, एक चीज मुझे बताओ, बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जरा सोच के बताना, क्या करना पड़ेगा? सना, Sir, I didn't understand the question. if the body is in rest, if I want to change the state of the body, You have to apply a force. we have to apply a force. अब एक बात बताओ, मैं एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? उस पिक्चर को देख के मुझे बताना. आई एम जस्ट अपलोडिंग द पिक्चर हियर. Okay, can you see the picture please? Yes, sir. In this Yes, one, sir. I'm saying this is the picture A
and this one I said the picture B. Okay, what is the thing what they want to show in this picture? जरा picture देख के मुझे बताओ. That this man, when an object is smaller, then it's easier for the person to move it, because the object contained, like the object is lighter. The weight is lighter than the man's weight, of course. So the force used is applied. The force applied is less. In the other case, it's the opposite, because the car is bigger than the man, and the force applied has to be more in order to move the heavy object. Okay. तो अब ये बताओ, मैं उतनी कहानी आपने सब बोल दी, मुझे भी कुछ सिंपल सा मुझे पूछना ये है कि यहाँ पर पिक्चर ए में कौन सा कार है? टॉय कार है. क्या है? टॉय कार. तो सृष्टि जरा बताओ, टॉय कार को धक्का लगाना आसान है या रियल कार को धक्का लगाना आसान है? Obviously toy car. ऑब्वियसली टॉय कार. टॉय कार का मास ज्यादा होगा या लेस होगा? Less होगा. Yes. मास लेस है. मास क्या है? More. ज्यादा है. सो याद रखना, मास लेस है, सो वी हैव टू अप्लाई व्हाट? लेस Less force, and more mass, more force. मोर मास मोर. Force. अच्छा, ये क्यों हमको लेस फोर्स क्यों लगाना पड़ता है टॉय कार में, और बड़े वाले ओरिजिनल कार में ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? क्या रीजन है? क्या रीजन क्या है इसके पीछे? Because it has the mass. Simple. Hello. Yes, sir. We have the mass, right? Okay. Yes, sir. Give me a second. आप ये नोट करो, less mass, less force, more mass, more force. Okay, can you see this? Yes, sir. ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अब मुझे ये बताने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? यहाँ एक वर्ड आता है, सना कैन यू हियर मी? Yes, सना, sir. यहाँ एक वर्ड आता है इनर्शिया. क्या वर्ड आता है? Inertia. इनर्शिया की टॉपिक नोट डाउन करो. क्या वर्ड आता है? इनर्शिया. किसी को इनर्शिया के बारे में कुछ पता है क्या? Anybody knows about the inertia? Hello? Guys, can you hear me properly? Okay, just give me a second. So this constant disturbance on someone's mic. I don't know if it's yours or Shrishti. Wait. Guys, can you hear me now properly? Yes, I could always hear you properly, but there's some disturbance. I don't know if it's yours or Shrishti. Okay, no problem. Okay, guys, we will know about inertia. Anybody knows about the inertia? No, sir. Okay. Just write down. I will let you know. Inertia is a tendency. Inertia is a... Okay, I will upload it here. Don't worry, guys. Can you... Okay. Guys, can you see this? Sir. Note down karo. A tendency to do nothing or to remain unchanged. What do you mean by inertia? A tendency to do nothing Sana, can you hear me?
Yes, sir. 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, दोनों का मतलब सेम है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. Noted? No, sir. Last line. Okay. Sir, done. Okay. Sana, are you done with this? I need 1 minute. Okay, take your time. हो गया? हो गया? Shall we continue? Yes, sir. ओके. अब देखो, स्टेटमेंट पहले मैं समझा देता हूँ. इनर्शिया इज व्हाट. अभी अभी हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा. उसमें क्या पढ़ा हमने कि ओके, आई विल टेक इट हियर. हमने ये पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है. रेस्ट से मोशन में कैसे आएगी? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे. यही पढ़ा है ना अभी हमने. अदरवाइज वो क्या रहेगा? वो रेस्ट में ही रहेगा. इनर्शिया भी यही बात कहता है. इनर्शिया भी क्या कहता है? सेम थिंग. इनर्शिया का मतलब ये है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, और यू कैन से द टेंडेंसी टू डू नथिंग और रिमेन अनचेंज. मतलब क्या? कि हमको कुछ नहीं करना. इनर्शिया कैन बी रिटन इन एग्जाम. ओके. So inertia means what? Inertia क्या है? It's a property of matter. Sana, you can ask me directly here. Hello, Sana, can you hear me? Sana, can you hear me? What is happening? Okay. Just unplug and plug it again. It would be better. You can ask me here directly. No, आप उसको plug in निकालो, हेडफोन को दोबारा लगा दो, ठीक हो जाएगा. Is it done? सना दोबारा निकाल के उसको लगा दो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. I'm not wearing headphones. Okay. Uh, okay, you can do one thing. आप उसको आप दोबारा से ज्वाइन कर लो सेशन, कोई बात नहीं. दोबारा से ज्वाइन करो सेशन, लॉग आउट होके. ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू. जस्ट अ मोमेंट सृष्टि.
Yeah, I think now I can hear you. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. आपको आवाज जा रही है? Yes, sir, I can hear you. Okay, that's great. Okay, so देखो मैं यहाँ ये बता रहा था कि yes inertia जो है वो पूछा जा सकता है. Inertia बहुत सिंपल है, आपको बस एक लाइन ये लिखना है कि it is a tendency to do nothing or remain unchanged. मतलब क्या कहता है कि अगर मुझे कोई काम नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा. जैसे कोई जिद्दी बच्चा, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, या एक सेंटेंस और लिख लो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में, दैट वुड बी बेटर फॉर यू. प्लीज मेक अ नोट गाइस. Inertia is property of a body. Inertia is a property of a body to which it resists a change. To which resist a change. ये तीनों नहीं लिखना, मैंने ये डिफिनीशंस आपके समझने के लिए दी हैं. ओके सृष्टि, कैन यू हियर मी? Yes, sir. इसमें देखो सिंपल सी बात है कि एग्जाम्पल लो, मैं एक बात बताता हूं आपको. कोई जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आज खेलने नहीं जाना है, ठीक है, बच्चा क्या बोलता है? नहीं मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, जिद पकड़ता है, राइट? वैसे ही बॉडी क्या कहती है? बॉडी पे आप धक्का लगा रहे हो. क्या लगा रहे हो आप? धक्का लगा रहे हो. बॉडी कहती है नो आई विल नॉट मूव. सो बॉडी कहती है नो आई विल नॉट मूव मीन्स the body has a property that it will not move, it will try to resist the change, and that property is known as inertia. Yeah. मतलब हम चेंज नहीं होंगे. Is that clear? Okay. Yes, sir. Okay. So आप थर्ड स्टेटमेंट लिख लो, ज्यादा बेटर होगा. कोई एक सेंटेंस आप एग्जाम में आंसर में लिख सकते हो. Yes, sir. डन हो गया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, fine. अब एक काम करो, मेरा एक एग्जांपल बताओ. एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप फोर्स लगा रहे हो, पत्थर हिलेगा क्या? बहुत बड़ा पत्थर है, पहाड़ जितना बड़ा, हिलेगा क्या? नहीं sir. नहीं हिलेगा. तो पत्थर क्या बोलता है? नहीं नहीं आप फोर्स लगाओ हम नहीं हिलेंगे. पत्थर क्या बोलता है? नहीं नहीं आप फोर्स कितना भी लगा लो हम नहीं हिलेंगे जी. क्यों? ऐसा क्यों बोलता है? बिकॉज इट हैज इनर्शिया. इट हैज व्हाट? Inertia. इनर्शिया. तो वो पहाड़ या पत्थर की टेंडेंसी हो गई कि हम नहीं हिलेंगे. सो एक बात नोट करो आप लोग, more mass More. वेट एक सेकेंड. मोर मास से पहले आप पॉइंट नोट करो. पॉइंट नंबर 1, इनर्शिया में पॉइंट नंबर 1, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. हम इनर्शिया कैसे मेजर करेंगे? सो इनर्शिया अगर कोई मेजर करना है तो हम उसके मास को नोट डाउन करेंगे. दिस इज द नोट, few points. The inertia. Sana, are you noting it? Yes, sir. Yes. अगर जैसे हम लोग फोर्स बोलते थे ना, 5 kg फोर्स, 3 kg फोर्स,
तो अगर इनर्शिया मेजर करना है तो हमको इनर्शिया मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम? वी विल मेजर द मास. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सेकंड पॉइंट इसी में नोट करो. heavier mass, more inertia. lighter mass, less inertia. कोई प्रॉब्लम? सना, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल हियर? No, sir. जल्दी से ये पॉइंट नोट करो. Yes, sir. नोट हो गया? No, sir. अच्छा, Yes. नोट करो. Yes, sir. अच्छा, अभी मैंने बताया था इस वाले फिगर में, मैं थोड़ा पेज चेंज कर रहा हूँ गाइस, एक Yes, सेकेंड. sir. Done. इसमें लेस मास था तो फोर्स हमें लेस लगाना पड़ा, राइट? इसमें मास ज्यादा था तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ा. अब इस फिगर को देख के बताओ कि इस ए में इनर्शिया ज्यादा होगी, इनर्शिया कम होगी? कम होगा. So we can write it down here, less inertia, right? And here we can write more inertia. We can write it or not? Tell me, guys. We can write? So similarly, Sana, can you tell me, if we have more inertia, मतलब ज्यादा जिद्दी, तो मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी जिद को खत्म करने के लिए? नहीं, बताओ. बच्चा ज्यादा जिद्दी होता है तो ज्यादा पिटाई लगती है, कम पिटाई लगती है? ज्यादा पिटाई लगती. ज्यादा पिटाई लगती है. और बच्चा कम जिद्दी तो कम पिटाई, तो लेस फोर्स. याद रखना गाइस, बच्चा जिद्दी, ज्यादा पिटाई. हाँ जी सना? Yes, sir. नोट डाउन कर लो जल्दी से. घर में कौन जिद्दी है, आप या आपकी सिस्टर? सना? Saisha. वो जिद्दी है. ओके, चलो यहां तक हो गया. यहां तक हो गया गाइस. कैन वी मूव? Yes, sir. चलो, यहां पर आने के बाद इनर्शिया हमें क्यों पढ़ना था, अब मैं बताता हूं. एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया. ओके, so I'm going to tell you application of inertia. Okay guys, just एक second. अभी रुक जाओ, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. हाँ. Okay, give me a moment. Copy image. Okay. Loading. Can you see this image guys? Yes, sir. इसमें क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? क्या हो रहा है बताओ. सना? A boy is being pushed by another. नहीं, दोनों एक ही बॉय है. वो बॉय चल के जा रहा है और फिसल गया. नहीं, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो. आप लोग कभी बस में चढ़े हो? Yes, sir. ओके, सना आप बस में चढ़े हो कभी? हेलो? बस में कभी आप अगर खड़े हो, स्टैंडिंग हो, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप बस में हो, बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो आपकी स्पीड क्या होगी इफ यू आर इन द बस? Stationary, because you're just sitting. But as compared to earth, your speed will be remain same as the bus. Yeah. अगर मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? अर्थ से. चलो ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना. अब ये देखो, ये जो बंदा है, मैंने यहाँ येलो कलर से मार्किंग किया है ए, यहाँ पर ये खड़ा था. क्या था? खड़ा था और मोबाइल में देख रहा था, कहीं पकड़ नहीं रखा था. कैन यू सी ही इज लुकिंग इन द मोबाइल, राइट? कहीं पकड़ नहीं रखा था, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प इसने ले नहीं रखी थी. बस 80 की स्पीड से मूव कर रहा था, तो आप भी 80 के स्पीड से मूव कर रहे थे. दैट मींस कि ही इज आल्सो मूविंग विद द 80 किलोमीटर पर आवर.
बस ने सडनली ब्रेक लगाया, बस ने क्या लगाया, बस ने सडनली ब्रेक लगाया। तो अब मुझे बताओ बस की स्पीड क्या हो जाएगी, बस की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, करेक्ट। बस की स्पीड रिड्यूस होगी तो ये जो इंसान है इसका बॉडी, देखो यहाँ पे लेग पर ध्यान दो, ये इसके साथ ज्वाइंट है, राइट। तो बस की स्पीड 0 हो गई, लेकिन इसका हेड कहता है जी कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे, वी विल मूव विद द 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाई? बिकॉज आई हैव इनर्शिया, मैं रुकूंगा नहीं, मैं मोशन में हूं, मैं मोशन में रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। कौन, किसकी हिम्मत है मुझे रोक ले? बस बोलता है नहीं जी मैं तो रुकूंगा। तो क्या होगा, लेग यहीं रुक जाएगा, बॉडी आगे की तरफ झुकेगी, तो ये क्या होगा, ये धड़ाम से आगे की तरफ गिरेगा या नहीं गिरेगा, बताओ? गिरेगा। और सिंपल सी बात, आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि बस में आप खड़े हो और अचानक ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो या नहीं झुक जाते हो, मुझे बताओ? झुक ही जाता है। सना, हैव यू एक्सपीरियंस दिस? No, sir. क्यों? बस में बैठ के जाते हो इसलिए? I've never traveled in a bus. ओके, यू हैव नेवर ट्रेवल्ड इन द बस। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा भी एग्जांपल है, डोंट वरी। तो इसमें केस में क्या होगा कि इनर्शिया क्या कहता है इसकी हेड को कि मोशन में रहो, हम नहीं बदलेंगे। तो ये बोला ठीक है हम मोशन में हैं, लेग के पास 0 हो गया क्योंकि बस से कनेक्टेड है, तो यहाँ ये 0, तो अचानक से बॉडी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा और ये गिर जाएगा। ऐसा बहुत बार बस में होता है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया। अभी दूसरा एप्लीकेशन हम चल के देखते हैं जो कि सना को मालूम होगा। Second application I'm just going to show you guys. Give me a moment. देखो ये एक लड़का है जो कि कार में ट्रेवल कर रहा है। सना आपने कार में ट्रेवल किया है? Yes, sir. अच्छा चलो, ये कार में ट्रेवल कर रहा है, सीट बेल्ट वगैरह सब लगा रखी है इसने। अभी मान लेते हैं कि कार की स्पीड 0, कितनी है, 0। सो बॉय की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0. कोई दिक्कत है बताओ? यहां पर हेड है इसका। अब सुनो, कार में एक्सेलरेटर मिला, क्या मिला कार में? एक्सेलरेटर। सो कार की स्पीड पकड़ लो 40 किलोमीटर पर आवर सडनली, ठीक है? Yes, sir. So now what will happen? Now what will happen? Boy head says that it should be 0 और कार की मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसका हेड किधर जाएगा? इसका हेड पीछे की तरफ जाएगा। Yes, sir. तो इसका हेड पीछे जाएगा और इसीलिए यहाँ पे ये दिया रहता है कि इसका हेड इसके साथ टकरा जाए और इसको चोट भी ना लगे। तो इनर्शिया, यहाँ देखो इनर्शिया क्या कहता है कि इस केस में इनर्शिया क्या बोलता है, नहीं जी हम तो रुके हुए हैं, 0 किलोमीटर पर की स्पीड है, हमें मूव नहीं करना, हमें मूव नहीं करना। कार बोलता है नहीं भागो आगे की तरफ। तो बॉडी आगे की तरफ मूव किया नीचे से और हेड हमारा रुका रहेगा। सो हेड विल स्ट्राइक वेयर, head will strike this side. Is that clear? तो अब जब बॉडी एक्सेलरेट होता है तो सॉरी कार एक्सेलरेट होती है, स्पीड बढ़ती है, तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिरती है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, कभी फ्लाइट में चढ़ा होगा आपने, तो कैसे फ्लाइट बहुत बार ही होता है that when you are like when it's like going up, so I mean by when it's taking a takeoff, so उस Right. time पे when you travel or like go anywhere, it's not in a straight alignment. It's Correct. Right. Okay, please. Okay, that's okay. So ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. तो एक काम करो, आप नोट करो, speed reduces body falls forward, if car moves forward, if car moves
अगर आगे की तरफ जा रही थी और स्पीड रिड्यूस हो गया तो बॉडी किधर जाएगी, बॉडी आगे की तरफ गिरेगी, राइट। इफ द कार मूव्स फॉरवर्ड एंड स्पीड इंक्रीजेस तो बॉडी किधर जाएगी हमारी, बॉडी फॉल्स बैकवर्ड। ये याद रखना तो आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट याद रहेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sana, do you clear? Yes, sir. Please make a note of it fast. Done, sir. Sana, are you done with this? So just 1 second. Just do it fast. Just do it fast and let me know so we can move forward. Sana, Srishti, can you hear me? Srishti? Yes, sir. Yes. Sana, can you hear me? So I'm done. Okay, give me a moment. Give me a moment. Hold a moment, second. Just a second. यहाँ तक हो गया आप लोग का, हम आगे चलते हैं अभी। Okay. Okay. So now I'm moving, guys. यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग को एक टॉपिक है, वो है मोमेंटम। नया टॉपिक आता है ना। मेरा पेन कहाँ गया? गिव मी अ मोमेंट, गाइस। Okay. Yeah, I think it's working now. Okay, guys. So, guys, can you hear me? Yes, sir. So our new topic is momentum. Please make a note of it. कुछ मालूम है मोमेंटम के बारे में? सना? No, sir. सना? मोमेंटम नहीं पता? अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। Okay. So give me a second. I'm just uploading one image and you can make a note of it. It's very small topic, very easy topic. Please make a note of it. अब हम मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से, right? And momentum is the product of mass and velocity. आप लिखो definition. What is momentum? The momentum is product of mass and its velocity. नोट कर लो फटाफट। Done, sir. Done, sir. Okay.
Fine. Okay, so we can go ahead. Momentum is mass and its velocity. अच्छा guys, एक चीज बता दूं, एक वर्ड होता है मोमेंट. क्या होता है? मोमेंट. मोमेंट और मोमेंटम दोनों अलग अलग वर्ड हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों सेम है, कि मोमेंट और उसमें यूएम का ही तो फर्क है. यूएम का फर्क नहीं है. दोनों, मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी एंड मोमेंट इज जस्ट लाइक अ फोर्स. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. इज इट क्लियर विद यू? Yes, sir. हाँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना उस चीज का. चलो गाइज आगे बढ़ते हैं. अब हम बात कर रहे थे मोमेंटम की. तो मोमेंटम में हमने यहाँ बात किया कि मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज जस्ट मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, राइट? इसको आप एक फोर्स के टाइप में, इसको आप क्या मानोगे? इज टाइप ऑफ फोर्स. ये एक्चुअल में फोर्स नहीं है, ये एक्चुअल में फोर्स नहीं है, बट मैं आपको कहता हूं कि इसको एक टाइप ऑफ फोर्स मानकर चलना, क्योंकि इसमें भी एक ताकत होती है, एक फोर्स होता है. कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? जस्ट गिव मी सेकेंड. गिव मी अ मोमेंट. कॉपी. ओके. मोमेंटम का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? सृष्टि, 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 Yes, sir. what is the formula for momentum? P equal mv. हाँ हाँ, P is equals to mv. Okay, right. अब एक बात बताओ मुझे जरा यहाँ पे, इस साइकिल का मास मैंने ले लिया 10 kg. कितना So, kg? are you saying something? Yes, Sana, are you saying So, something? are you saying something? No, no, no. Can you hear me? So, I can hear you. Tell me. sir, I can't hear you. Oh, Sana, So, give me a second. Can you hear okay, me I'm now? gonna rejoin. Yes, rejoin. Okay. सृष्टि, आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी क्या? सर मेरे पास क्लियर है आवाज आपकी. ओके, क्लियर है आपके पास. ओके, ठीक है. चलो कोई नहीं, उन्हें ज्वाइन होने दो, देन आई विल लेट यू नो. Yes, Sana, can you hear me now? Can you hear me now, Sana? Sana? Srishti, can you hear me? Yes, sir. Okay, I don't know what's happening with Sana. Sana, can you hear me? Sana, can you hear me now? So, Yeah, Sana, can you hear me? now I can. ओके. ओके, ठीक है. चलो यहाँ बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ द मास ऑफ साइकिल इज 10 kg. ओके, एंड साइकिल वेलोसिटी इज about you can consider as 100 meter per second. Okay, similarly the mass of the truck I am taking as
1000 kg and the velocity of the truck I have considered here 1 meter per second. Can you tell me the momentum? Can you tell me the momentum for both? So I don't understand your question. मैंने दो लिखा है, एक में मैंने मास दिया आपको, वेलोसिटी दिया, यहाँ भी मास दिया, यहाँ भी वेलोसिटी दिया. I have asked the momentum for both, momentum for the For cycle this one, and momentum for the truck. It is 1000. Yes. Just find out fast. क्या हुआ सृष्टि? Yes. What happened? इसमें प्रॉब्लम क्या आई है? छोटा सा तो है. सर इसको डायरेक्ट इन मल्टीप्लाई कर देंगे ना मास हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट. सर तो दोनों में तो 1000 आएगा. यस, तो मुझे यही चीज तो बतानी है, क्या दोनों में सेम आ रहा है? यस सर. क्यों सेम आ रहा है, कुछ मालूम है? सना, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? I'm getting 1000 only. In both the cases? Yeah. Okay, can you tell me the reason why you are getting 1000 in both the cases? Because of your velocity is 100, whereas the velocity over there remains 1. हाँ हाँ बोलो बोलो. Yes, okay. क्या गाइस, क्या समझ आया यहाँ पे? आप लोग कुछ बताते भी नहीं हो, समझते हो तो. देखो सिंपल सी बात, यहाँ पर 1000 आया, यहाँ पर भी हमको 1000 मिला. इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर इसका मास ज्यादा कम है बट वेलोसिटी ज्यादा है तो भी मोमेंटम सेम बनेगा. मतलब इसको जो चोट लगेगी वो बराबर चोट लगेगी एज कंपेयर टू ट्रक. अगर ट्रक से धक्का लगे या फिर साइकिल से धक्का लगे तो यहाँ पर इस केस में इस बच्चे को चोट सेम लगनी है अलग लगनी है, बताओ. सेम लगनी है. सना, Yes, sir, same. बच्चे को चोट सेम लगनी है. क्यों सेम लगेगी? क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बहुत यहाँ पे ज्यादा उसका है. मास सेम है, यहाँ पे उसके वेलोसिटी ज्यादा है, बस ये राइट. सो अगर हमें देखना है मोमेंटम, so momentum will depend upon the two factors. Momentum will depend upon what factors? Mass and the velocity. ऐसा नहीं कि सिर्फ वेलोसिटी पर ही हम चेक कर लेंगे या फिर मास ज्यादा हुआ तो मोमेंटम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है. अगर किसी बॉडी का मास कम है और वेलोसिटी ज्यादा है, that can be also a dangerous item. ओके मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहाँ पे गाइस, आपको समझाने के लिए. आप लोग को पता होगा, आई विल जस्ट यूज इट हियर. सना, पहले फर्स्ट पिक्चर में देखो क्या है. फर्स्ट पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में a cricketer is hitting a ball with a bat. ओके. अब एक बात बताओ, वेट 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 वेट, ये बॉल है ना, राइट? इसमें देख रहे हो एक प्लेयर इंजर्ड है, सर फट गया इसका. आपको मालूम है क्रिकेट खेलते वक्त बहुत से लोगों को चोट लग जाती है, कभी सर फट जाता है, कभी पैर में. यू नो सचिन तेंदुलकर की कितनी बार सर्जरीज हो चुकी है हैंड्स में, मालूम है आपको?
Yes, sir. क्यों हुई है सर्जरीज? उसको मजा आ रहा था सर्जरी कराने में क्या? सर सृष्टि, चोट लगी। चोट लगने, किससे चोट लगी उसे? बॉल से, ऐसा नहीं बॉल। किसी और चीज से चोट लगी। बॉल से चोट लगने के कारण उसके हैंड के फिंगर्स कई बार टूट जाते हैं। अब एक बात बताओ, बॉल का मास कितना होगा? डू यू नो दैट? जस्ट दिस मच। कितना है ये? कितना है ये? 169 ग्राम। 169 ग्राम्स। आप खाना एक बार खाते हो, वो कितना खाते हो पता है आपको? नो सर। अबाउट 400 ग्राम्स आप खा लेते हो। तो जितना आप खाना पेट के अंदर रखते हो उससे कम ग्राम का बॉल होता है, राइट? अब उस बॉल से चोट लगने पर भी सर फूट जा रहा है, क्यों? बिकॉज द बॉल हैज वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी। अब इस बॉल को जो बैट्समैन ने बहुत तेजी से मारा, तो तेजी से मारा मींस इट हैज हाई वेलोसिटी, एंड ड्यू टू दैट वेलोसिटी अगर उसका कोई ये फोर्स बन गया, मोमेंटम बन गया, और वो मोमेंटम हाई मोमेंटम हो गया, उसको कोई रोकने जाएगा तो उसे क्या लगेगा? उसे चोट लगेगा। इज दैट क्लियर गाइस? यस Yes. सर। ओके, यहां तक क्लियर है? तो अगर कोई मोमेंटम देखना है तो हमें मास एंड वेलोसिटी बोथ थिंग्स पर हम मोमेंटम देखेंगे। क्लियर? Yes, sir. यस। नोट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। SI unit of मोमेंटम। momentum. So SI unit of momentum is kg meter per second. कैसे? ध्यान दो, mass into velocity. What is the unit for mass? Kg. And what is the unit for velocity? Meter per second. So the unit for momentum would become what? Kg times meter per second. Make a note of it fast. डन सर। Sana, are you clear with this? Yes, sir. जल्दी से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, और मैं कुछ होमवर्क्स भी आप लोग को गाइस सेंड करूंगा, सो बी प्रिपेयर। ओके, कोई सॉल्व करने जल्दी से बताएगा? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इट? फास्ट फास्ट, वेरी फास्ट। मोमेंटम मास। कैन यू हियर मी गाइस? 150 यस, मीटर पर 150। सेकंड। यस, 150। कैसे? सिंपल सी बात है, मास हो गया यहाँ 75 kg, वेलोसिटी हो गया यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड। So momentum is mass into velocity, that is 75 times 2, that is 150 kg meter per second. Clear? Okay, जल्दी से ये वाला बनाओ, जल्दी से। That's clear. Okay, solve this one. सर फर्स्ट का 1000 kg मीटर पर सेकंड आएगा। Okay, and the second one? सर बना है। Sana, what about the first one answer? सेकंड 8 kg मीटर पर सेकंड। Sana, are you done with this? Sana, can you hear me? Sana, can you hear me? Please आप लोग अनम्यूट नहीं किया करो। Mass into velocity. Yes, sir. I know. Sorry. My mic something is wrong today. कोई बात नहीं। So देखो यहाँ पे ये 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। But sir, हम उसको kg और मीटर पर सेकंड को कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई? तो मल्टीप्लाई कहाँ किया? ये तो दोनों अलग अलग मल्टीप्लाइड है ना। Can you see? Yeah, so like can we write the unit separately and not change them, convert them? हमने कहीं कुछ कन्वर्ट किया क्या? आई एम नॉट नहीं, कन्वर्टिंग। sir. मैंने kg मीटर पर सेकेंड में छोड़ा। दिस इज द SI यूनिट फॉर मोमेंटम। दिस इज व्हाट? SI यूनिट। याद होगा SI यूनिट ऑफ फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन में अलग होता है, राइट? अब यहाँ देखो, यहाँ इसका मास कितना है? 0.2 kg is the mass and the velocity is 400 meter per second.
सो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/100 times 400 cancel, so it gives me 8 kg meter per second. Can you see guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. देखो अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ विच वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, बट आप लोग गाइस इसको रिवाइज करोगे। हमने आज सीखा न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया एंड मोमेंटम, 3 टॉपिक्स हमने इसमें कवर किया है। इसके बाद हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ। गाइस न्यूटन सेकंड लॉ इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, बट वर्कआउट करना ज्यादा होगा। Sir, does this chapter include numericals? यस, न्यूमेरिकल्स भी हैं। न्यूमेरिकल धीरे धीरे आएगा, जब न्यूटन थर्ड लॉ कंप्लीट कर लेंगे ना तो न्यूमेरिकल बनाने में रोना आएगा। सो पहले से कवर कस लो, मेहनत करो, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलो कोई नहीं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे फॉर आवर फिजिक्स क्लास। ओके Yes, sir. ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके बाय, टेक केयर। Next. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Stay connected.